Dear students, in this lecture we are stepping in a new topic in chapter 14 of the Indian Penal Code. That's named as obscenity law or law of obscenity. Obscenity actually is a very subjective topic, and from last 100 years or so this has been a subject of debate within the legal luminaries and the professionals of law, and several courts have at different times tried to delineate the contours of what constitutes as obscenity in different ways and approaches. So we will try to understand that one by one, all relating to the topic of obscenity. But before that, I deem it appropriate that I must introduce you to this chapter 14 of the Penal Code. ये chapter 14 बड़ा important है और बहुत ही ज़्यादा important है because it deals with such types of offences which are based on public policy और जिसे social welfare, या जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, there are two types of crimes. One is true crimes or traditional crimes जो English understanding of criminal law है उसमें traditional crimes, and then there are some other types of offences which are known as regulatory crimes. So long back in the judgment of Sweet versus Parsley 1970 ये classification offences का कोर्ट ने recognize किया था, admit किया था in a way, और admitting that court observed that regulatory crimes ऐसे crimes होते हैं which are based on public policy or social exigency. So many of the courts and legislatures even try to do away with the need of mens rea in regulatory crimes. Regulatory crimes वो crimes हैं जिनमें mens rea को ऑल टुगेदर कंसिडर नहीं किया जाता है या बहुत ज़्यादा लोअर स्केल ऑफ मेंस रिया पे भी गिल्टी पाया जाता है बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी. अब इसमें ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें सोसाइटी को फूड अडल्टरेशन, नॉइसेंस, नेग्लिजेंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सब्सटेंसेस, डिसेंसी एंड मोरालिटी एंड मेंटेनिंग सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ ट्रैंक्विलिटी इन द सोसाइटी, ये सारे चैलेंजेस हैं. तो इन लॉज में इसलिए मेंस रिया के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर देना they will defeat the purpose of legislation and laws as well. For example, if a person does an obscene act publicly and then claims that he did not know, or he says he was drunk, and therefore he did not possess the requisite mens rea and takes defense of intoxication, he will conveniently choose to do so, and the purpose of legislation or the law will get defeated. तो चैप्टर 14 जो है 268 से लेकर के 268 से 294A से डील करता है. ये इट स्ट्रेचेस फ्रॉम दीज प्रोविजंस टू दिस. ये चैप्टर 14 है. 15 आपको पता होगा ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन से रिलेटेड है, और 16 तो दैट्स most famous, that offenses against human body and then against property. This is chapter 14. और chapter 14 में 5 तरह के fields को affect करने वाले offenses को recognize किया गया है, जिसमें है public health, safety, convenience, decency and morals. ये इसको लिख लेते हैं. देखें, their offenses, it deals with offenses affecting public health, safety, convenience, decency and morals. These 5 fields. तो इसमें बहुत तरह के ऑफेंसेस मिलेंगे आपको, जैसे पब्लिक नुइसेंस. तो पब्लिक नुइसेंस में पहले भी बताया था, इट इज़ वन ऑफ द ऑफेंसेस इन विच द नीड ऑफ मेंस रिया हैज़ बीन डन अवे विद. यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया और मेंस रिया हैज़ नॉट बीन इम्पोर्टेड. द लायबिलिटी इज स्ट्रिक्ट. इसी तरह फिर आते हैं नेग्लिजेंस विद रिस्पेक्ट टू dangerous weapons or animals or combustible substance or explosive substance,
और सिमिलरली अडल्टरेशन ऑफ फूड्स, फूड अडल्टरेशन में इंसान मेंस रिया प्लीड कर ले तो लॉ डिफीट हो जाएगा। इसी तरह रैश ड्राइविंग 279 and similarly negligent behavior with respect of certain substances and finally decency and morality। हमें जो है प्रोविजन जो डिस्कस करना है वो ऑब्ससीनिटी से रिलेटेड है, दैट इज़ जहाँ इंसान ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स की सेल, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो वी स्टार्ट विद द हेडिंग। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो तो हो गया, मगर मुझे बताना इतना था कि ये चैप्टर कहाँ से स्ट्रेच कर रहा है, और ये वो चैप्टर है, वो पार्ट है जिसमें मेंस रिया के वर्ड्स जैसे नोइंगली, वॉलंटरली और इंटेंशनली इतना कम यूज़ हुए मिलेंगे आपको, रादर किसी ऑफेंस में तो यूज़ ही नहीं हुआ है, लायबिलिटी स्ट्रिक्ट है। एंड नाउ मूविंग टू द करंट डिस्कशन पार्ट जो हमारा है ऑब्ससिनिटी। ऑब्ससिनिटी में जो प्रोविजंस है ऑब्ससिनिटी वो 3 हैं इम्पॉर्टेंट। वन इज़ 292 जिसमें ऑफेंस बनाया गया है सेल, पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन and import, export and public exhibition, इसी तरह conveying and other letting on hire obscene materials। तो इसके लिए obscene एक कैच फ्रेज था, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत थी कि क्या चीज़ obscene कहलाएगी। वही एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल कॉनड्रम है जिसको पिछले 100-200 सालों ने कोर्ट ने इतना रेगुलेट किया है और इंटरवीन किया है। अब आप ये कह सकते हैं ऑब्ससिनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जुडिशरी के हवाले हो गया है और स्टैट्यूट बुक्स इसके बारे में साइलेंट हैं और होना पड़ा। रीज़न 2 हैं ऑब्ससिनिटी। बेसिक तो ये है कि ऑब्ससिनिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड फॉर अ सोसाइटी, बिकॉज जो चीज़ कल ऑब्ससीन थी वो आज नहीं हो सकती। सोसाइटीज़ कीप ऑन चेंजिंग देयर standard of morals and decency। for example अगर आज से 15-20 साल पहले रंगोली या चित्रहार के प्रोग्राम के दौरान डीडी नेशनल में सौंदर्य साबुन निरमा का ऐड आता and it was deemed obscene, अनकॉमन मैन उस पर रिएक्ट कर जाता था। and in today's अगर न्यूज़ आवर और प्राइम टाइम के प्रोग्राम में बीच में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ऐड इस फॉर्म में आ जाए कि उसमें ऑब्ससिनिटी और न्यूडिटी भी हो, पार्शियली इट इज़ कंडोन्ड इन अ वे। सो इसको रेगुलेट करना वंस फॉर ऑल लेजिस्लेचर के लिए बहुत मुश्किल है। एंड नेक्स्ट प्रोविजन इज़ 293 एंड 294। अब इनको हम एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। 294 ए इससे रिलेटेड नहीं है, वो अमेंडमेंट से आया हुआ है, इट्स रिलेटेड टू लॉटरी ऑफिसेज। So 293 is actually, this is a class based or class specific provision जो young people को ये obscene material provide करने के लिए या sell करने के लिए offense बनाता है। It's a class इसीलिए कि सिर्फ young people के respect में ये offense है। और similarly 294 is also, it is a सिचुएशन स्पेसिफिक और सिचुएशन स्पेसिफिक। ये मैं लिख रहा हूँ, टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं मिलेगा इस तरह सिचुएशन स्पेसिफिक या वेन्यू स्पेसिफिक ऑफेंस है। ये वेन्यू स्पेसिफिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक प्लेस से डील करता है। 294 अगर ऑब्ससीन एक्ट, पब्लिक प्लेस, ऑब्ससीन एक्ट या ऑब्ससीन सॉन्ग या बैलेड एट्सेट्रा पब्लिक प्लेस पे कोई ऑफेंडर करे तो जनरली दिस इज़ रिलेटेड, ये मेन जो थ्रस्ट प्रोविजन है वो 292 है। और फिर हम 293 और 294 में चले जाएंगे और पीनल प्रोविजंस हम डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1 और फिर केस लॉ से इसको समझेंगे। बहुत डिटेल्ड लेक्चर होने जा रहा है और ये बहुत चैलेंजिंग टॉपिक भी है लॉ में समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअली द पीनल प्रोविजंस रादर ऑफ we'll start with the penal provisions of the later part 293 and 294। देखिए ऑब्ससिनिटी तो वैसे जिसे अश्लीलता हम कहते हैं, तो इसको डिफ़ाइन करने में अब मसला है। तो
वो कोर्ट्स के ज़रिए से ही हर बार टाइम एंड अगेन डिटरमाइन होता है, बट कोर्ट्स को भी इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन में कुछ यूनिफॉर्म एंड यूनानिमस स्टैंडर्ड्स और यार्डस्टिक्स ले डाउन करने पड़ते हैं ताकि कन्वेंशनली वो प्रेसिडेंट के तौर पे फॉलो हो सके। वो केस लॉज का एक कटीना ऑफ जजमेंट्स है यूएस का, इंग्लैंड का और ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, जो हम डिस्कस करेंगे। मगर फ़िलहाल हम देखेंगे कि ऑब्सनिटी क्या है, वो तो अभी डिस्कस करेंगे। अभी उस कॉन्सेप्ट को ऑन होल्ड रखिए, ऑब्सनिटी किसको कोर्ट्स मानती हैं। मगर अगर ऑब्सीन मटेरियल है, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है, 293 के अंडर उसको सेल किया टू यंग पीपल, और यंग की डेफिनेशन यहाँ पे जो है ना, वो कोई डेफिनेशन नहीं, ये एज ग्रुप चुना है 20 साल से नीचे की उम्र। अगर कोई भी पर्सन जो है, either he sells or distributes or he circulates or exhibits any obscene object in the form of, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। ऑब्सीन ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल कौन सा ऑब्सीन होता है। either it may be a song, it may be in the form of a video, it may be in the form of a book, writing, pamphlet, painting, or anything। तो अगर वो that is being sold or let on hire or distributed or circulated to a person below age of 20 years, then it's an offense under section 293, जिसकी punishment जो है 3 years होती है, 3 years और fine of 2000 rupees, 2000 rupees fine, 2000 rupees fine or both। ये वाजे कर लीजिए जहन में कि इसकी पनिशमेंट 3 years imprisonment है और फाइन और बोथ। बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम, ये अगर पहला कन्विक्शन उसका हो गया। सेकंड और सब्सिक्वेंट जिसे कहते हैं, यानी कि सब्सिक्वेंट का मतलब ये है तीसरा, चौथा, पांचवा कन्विक्शन भी। ऑन एवरी अदर कन्विक्शन, अगर इसके बाद पहले कन्विक्शन हो गया एंड the conviction means कि उसके he has undergone a sentence after that, तो फिर किया ये offense, if he is found guilty on a second occasion, तो on second or subsequent occasion which includes third, fourth, fifth occasion, imprisonment enhance हो जाएगी and which may extend to 7 years and he shall also be liable to fine। This second occasion he shall 7 years imprisonment plus fine and which may extend to 5,000 rupees, 5,000 rupees। और इस केस में 3,000 रुपीज़, ओह सॉरी मैं गलत लिख गया, इस केस में 3 years पनिशमेंट प्लस, ये प्लस है, ये ऐसा नहीं है, एंड फाइन। एंड हमेशा इसमें फ़ाइन, तो क्योंकि ये रेगुलेटरी ऑफेंस है तो पनिशमेंट तो इसमें लाजमी होती है, तो ये और नहीं है। इसमें 3 years ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, 3 years imprisonment plus 2,000 rupees fine, and on second or subsequent conviction, a conviction under 293, or 293 क्या कहता है, it recognizes the offense of sale or letting on hire or distribution or exhibition or circulation of obscene objects or material to a class, that is a persons below 20 years of age, that is young persons। तो ये social exigency पे based है, because young जो है वो ज़्यादा vulnerable होते हैं, जवानी के जोश में बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं। although ये एक दिस इज़ अ डिफरेंट मोमेंट जो कई सालों से चली है कि हम अपना अच्छा भला खुद समझ सकते हैं, लेकिन एक हद तक तो ये सही है, बट व्हेन दिस डिमांड गेट्स एग्जैजरेटेड तो देयर इज़ अ ससेप्टेबिलिटी कि यूथ मिसलीड किया जा सकता है। तो ये एक पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड प्रोविजन है। अब सिमिलरली ये जो 294 है सिचुएशन स्पेसिफिक और प्रोविजन, अगर इसमें किसी ने ऑब्सीन एक्ट या सॉन्ग पब्लिकली गाया, फॉर एग्जांपल इसमें मेंजरिया को लेकर के कोई एलिमेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसको जो है वो यानी उसने जानबूझ के किया किसी के लिए, नहीं। ऑब्सीन दो चीज़ें इसमें, दो तरह के एक्ट सीरियस में क्या है, ऑब्सीन एक्ट, कोई ऑब्सीन एक्ट किया, लेकिन हाँ ये भी मैं बता दूं कि ये क्योंकि पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए हमेशा, और या फिर ऑब्सीन सॉन्ग, ऑब्सीन सॉन्ग, सॉन्ग नहीं, सॉन्ग के अलावा सॉन्ग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बैलेड होगा, कोई गीत है, गाना है,
या कोई और शायरी पढ़ी पब्लिक प्लेस पे एंड विच इज़ ऑब्सीन इन नेचर, तो इन आइदर ऑफ द केसेस ऑब्सीन एक्ट किया जिसमें फ्लैशिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स आता है, या आजकल बहुत रैम्पेंट है, बहुत सारे एक्ट्स ऐसे पब्लिकली ऑफन रिपोर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह के ऑफेंस करने में उसकी पनिशमेंट 3 मंथ्स होगी या फाइन, या दोनों होंगे, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ्स, 3 years नहीं, यहाँ पे 3 months और फाइन ऑफ बोथ, और फाइन ऑफ बोथ। ये एक पब्लिक प्लेस पे इसने किया, और सिंस ये ऑफेंस है वेन्यू के रिस्पेक्ट में पब्लिक। अगर प्राइवेट प्लेस पे एक इंसान ऑब्सीन सॉन्ग्स गाए, बाथरूम में अगर गा रहा है अपने, तो वो लायबल नहीं होगा। और इसी तरह देयर इज़ वन मोर प्रोविजन जिसकी तरफ मैं यहाँ रेफ़र करना ज़रूरी समझता हूँ, कि एक और प्रोविजन है जो चैप्टर 22 में है, सेक्शन 509, यस 509। इसमें जो है इसी तरह का अक्सर आप देखेंगे, अगर 294 का चार्ज लगा है किसी अक्यूज पे, तो चार्ज शीट में कभी कभार 509 भी साथ में लग जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में इसमें पनिशमेंट एनहांस हो गई। दिस इज़ अ क्लास ऑफेंस अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ विमेन। अगर कोई इनडिसेंट रिमार्क पास किया या कुछ कहा पब्लिक प्लेस पे उसको, तो देन इट्स एन ऑफेंस। या प्राइवेट स्पेस में भी ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चैप्टर का है, ये बस इंसिडेंटली मेंशन कर रहा हूँ। देन पहले पनिशमेंट इसमें 1 साल थी, उसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ने 2013 में 3 साल कर दिया। पहले फाइन ऑप्शनल था, अब फाइन मैंडेटरी बनाया गया, 3 years प्लस फाइन है इसमें अब। तो अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ, पहले 292 दैट इज़ ऑब्ससीनिटी। उससे पहले मैं ऑब्ससीनिटी को लेकर के एक बैकग्राउंड आपको दे दूं। 292 ऑब्ससीनिटी क्या है, इसको लेकर के अक्सर चीज़ें डिस्प्यूट में और कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। एक है सोशल स्टैंडर्ड्स, एक प्राइवेट पर्सन, 1-2 लोग और या एक चंक ऑफ पीपल किसी चीज़ को ऑब्सीन कह सकते हैं, बट जुडिशरी को ये चैलेंज है कि इसको जैसे आप आगे पढ़ेंगे प्रोबेबली कि कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस करने का एंड हार्मोनाइजिंग दोज इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करने का, या सोशल इंजीनियरिंग का रॉस्को पाउंड ने जिसे कहा, एक चैलेंज है। अब एक सोसाइटी या एक सेक्ट किसी चीज़ को ऑब्सीन समझता है, एक ऑफेंड होता है, एक नहीं होता है। इसीलिए कभी कभार जो है ना, इसके बाहर भी इसका अगला चैप्टर जो है रिलेटिंग टू रिलीजन, अगर ऑब्ससीनिटी का चार्ज लगा तो उधर भी एक सेक्शन है 295 जिसका चार्ज लग जाता है, जिसमें हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का वो चार्ज है। आपको याद होगा कुछ साल पहले 2016 या 17 में एक मूवी आने वाली थी, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब जो है वो शाहिद कपूर की कोई मूवी थी, और उसमें पंजाब को लेकर के आई थिंक मोर देन 40 कट्स इस मूवी में सेंसर बोर्ड ने पहले करवाए। और फिर वो एक और थी द गर्ल विद द टैटू या ड्रैगन टैटू या कुछ इस तरह मूवी थी, और उसको सेंसर बोर्ड ने कहा कि इतने कट्स करेंगे एंड बहुत सारे सीन्स कट करने हैं, तो उन्होंने इंडिया में रिलीज़ करने से वो मना कर दिया। बल्कि कल ही एक न्यूज़ मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस पे कि कोई वेब सीरीज़ है, और वेब सीरीज़ जो है वो एकता कपूर ने बनाई है जिसका नाम है XXX सीज़न 2, उसके ख़िलाफ़ जो है ऑब्ससीनिटी की कंप्लेंट गई है, FIR रजिस्टर हो गई है रात। तो ये ऑब्ससीनिटी का लॉ जो है ना, जहाँ भी कोर्ट्स ने ले डाउन किया हुआ है, बहुत एक्रीमोनियसली मिंगल्ड है, इंटरट्वाइंड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मूवीज़ भी आती हैं, जो पर्सनल राइट है बना सकता है ऐसी मूवीज़ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रिंसिपल को कॉन्क्रीटाइज करें। इसी तरह पेंटिंग्स भी आती हैं, इसी तरह स्कल्पचर मेकिंग भी आता है, बुक राइटिंग भी आता है। तो अक्सर जो कैटिना ऑफ जजमेंट्स हैं इस बेस पे, वो इसी से रिलेटेड है। एक तो बुक लिखी, कोई नॉवल लिखी, मूवी बनाई और कोर्ट में चला गया कि ऑब्सीन है। दूसरा
कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का विक्टिम ने या अक्यूज ने प्ली ले ली कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसमें बिट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी इन्वॉल्व रहेगी। जब आएगा उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे इसको। 292, तो 292 का अभी बेयर प्रोविजंस देख लेते हैं क्या कहता है। ये एक्चुअली रिकग्नाइज करता है एक ऐसे एक्ट को। अब इसमें मेंसरिया समझना बहुत मुश्किल है, मैं आपको पहले से बता दूं, इसमें एक क्लॉज में मेंसरिया नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जो पहला क्लॉज है उसमें मेंसरिया कोई नहीं है, और जो सेकंड क्लॉज है उसमें कहीं कहीं पे मेंसरिया है। तो अब किस चीज़ को ऑब्सीन कहा जाए, इसमें एक सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसे हाइब्रिड टेस्ट हम कह सकते हैं, हाइब्रिड टेस्ट, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो कंटेंट का नेचर क्या है, वो ऐसा तो नहीं ऑब्सीनिटी के लिए ही बनाया गया है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कि उसका असर क्या है, सब्जेक्टिव टेस्ट के उसका असर क्या है एक रिसीवर पे, रीडर पे, विजुअलाइजर पे, व्यूअर पे। अब चूँकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ इस डिस्कशन के शुरू करने से पहले, कि अक्सर ये जो जजमेंट्स हम डिस्कस करेंगे एंड दिस लॉ आल्सो, this is now under a serious threat of challenges with this advent of technology and revolutionizing of communication sector, क्योंकि अब इंटरनेट हर एक के लिए एक्सेसिबल हो गया। अब अगर कोई चीज़ ऑब्सीन होती है, जैसे अब सोशल नेटवर्किंग एप्स कितनी आती हैं, या सोशल एप्स जो भी हैं कमर्शलाइज्ड वे में जो चल रही हैं, उसमें कितना सारा ऑब्सीन कंटेंट आ जाता है, एंड वंस आप रिपोर्ट करते हैं वो ब्लॉक हो जाए, वो 50 हज़ारों लाखों प्लेटफॉर्म्स पे शेयर हो चुका होता है। तो इसको एक तो ये चैलेंज है, और दूसरा ये कि जो भी जजमेंट्स आई हुई हैं इंडिया की, वो मूवीज़ के रिस्पेक्ट में या नॉवेल्स के रिस्पेक्ट में मिलेंगी। तो नॉवेल्स और मूवीज़ को कंट्रोल करना आसान था पहले, अब बहुत मुश्किल है। नॉवेल्स का ये कि PDF फॉर्म में आ जाती हैं, सर्कुलेट हो जाती हैं बहुत इजीली, 1 करोड़ टाइम्स शेयर हो जाएंगी जब तक कोर्ट की तरफ से इंजंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली मूवीज़ का, जैसे आप कुछ साल पहले रोइंगटन नरीमान ने पॉर्न साइट्स के, अडल्ट साइट्स के बैनिंग पे एक पटिशन के दौरान ये कहा था दैट दीज अडल्ट वेबसाइट्स आर हाइड्रा हेडेड, इफ़ यू किल वन हेड दे पॉप आउट एट 1000 प्लेसेस। अगर आप एक कंटेंट को रिमूव करते हैं, एंड ये एक पटिशन थी इन केस ऑफ मे बी ए केरला गर्ल जिसकी कोई ऑब्जेक्शनेबल वीडियो पोस्ट हो गई थी, एंड हिज फादर कमिटेड सुसाइड लेटर ऑन, बिकॉज कोर्ट ने ऑर्डर पास किया एक जगह से, एक प्लेटफॉर्म से उसको रिमूव करने का, एंड इट वाज अपलोडेड ऑन न्यूमरस प्लेटफॉर्म्स द नेक्स्ट डे। तो एक चैलेंज तो है, कीपिंग दिस इन माइंड एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ वी मस्ट प्रोसीड विद दिस, कि इसमें लॉ को बहुत ज़्यादा रेगुलेट और इंटरवीन करने की अब ज़रूरत है। जो भी जूरिस्प्रूडेंस है पुरानी वो बहुत अच्छी है, बट स्लाइटली इनकम्पैटिबल है विद प्रेजेंट सिनेरियो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो जो मोड्स हैं 292 में रिकग्नाइज किए गए, उसमें इंटरनेट भी और वीडियो भी एक मोड हम रीड करके, समझ करके, मान के चलेंगे, बिकॉज एनी अदर एक्सप्रेशन वहाँ दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद 292। व्हाट 292 सेज, इट रिकग्नाइजेज वेरियस फॉर्म्स in which obscene material may be made. For example, it may be a book है, और pamphlet है, इसी तरह writing है, painting representation है, painting representation, इसमें हम M.F. हुसैन का केस आगे पढ़ेंगे, लेडी चैटरली लवर का केस पढ़ेंगे, D.H. लॉरेंस ने जो लिखी नॉवल वो, और इसमें रंजीत उरेशी, बहुत सारे जजमेंट्स हैं। और इसी तरह बुक है, बुक तो हमने लिख ली, और क्या है, ड्राइंग है, यस ड्राइंग है। और ये कुछ क्लॉजेज मेंशन करने के बाद एनी अदर ऑब्जेक्ट है, तो एनी अदर ऑब्जेक्ट में ऑडियो वीडियो सब आ जाता है, JPG, GIF, क्योंकि फॉर्मेट्स तो आते रहेंगे नए, और MP3, MP4, MPEG जो भी फॉर्मेट्स हैं, उन सारे मोड्स में से किसी भी मोड में, वेदर इट्स ट्रांजिएंट और इट्स परमानेंट। मगर एक चीज़, एक चैलेंज है जो यहाँ वर्ड्स में अपना यूज़ कर लिए मैंने, ये वर्ड्स जो हैं बुक, पैम्फलेट, राइटिंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, ड्राइंग, इनसे ये तो परमानेंट फॉर्म में है सारे, और जो वो हैं वो ट्रांजिएंट हैं या इनविजिबल है, इंटेंजिबल है।
चैलेंज थोड़ा ये है कि क्या उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए जो ई कंटेंट है, बट आई वुड से येस, क्योंकि एनी अदर ऑब्जेक्ट जो है वो माना जाएगा, उसमें इंटरनेट मोड्स भी आ जाते हैं सारे। तो वो कब माने जाएंगे वो ऑब्सीन है, दीज ऑल मोड्स, ये है सब क्लॉज 1 292 का सब क्लॉज 1 इन सारे मोड्स को इन मेंशन करके कहता है कि ये शैल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन। तो डीमिंग क्लॉज है जो क्रिएट किया गया है, दे शैल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन इफ दे आर, और इफ द ऑब्जेक्ट जो अभी मेंशन किया गया वो है क्या, हम उसको ऐसे करके 1 2 3 करके लिखेंगे, ऐसे क्लॉज वाइज नहीं है, अभी रीडिंग करेंगे सेक्शन की। नंबर 1 इज लैशुवियस, 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 क्योंकि अब हमारी मदर टंग नहीं है तो हमारे लिए इसको इटीमोलॉजिकली समझना भी ज़रूरी है, अदरवाइज इंग्लिश जो है या एंग्लो सैक्सन्स जिन्होंने लॉ अपने आप को दिया, दे वेल अंडरस्टैंड कि व्हाट डू दे मीन बाय दिस, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं अश्लीलता या अश्लील, या जिसे फहश कहते हैं उर्दू में, तो वो हो लैशुवियस, यानी शहवत को भड़काने वाला, जिसे शहवत अंगेज़ भी कहेंगे, कि शहवत अंगेज़ चीज़ है इंसान के अंदर। बहुत इंसान एक ख्वाहिशात का मुरक्कब है, तो मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान का पेट भरा हुआ है, उसके सामने खाना रख दो तो हो सकता है वो इनकार करे, एंड ही मे ब्रैग अबाउट द लग्जरी ऑफ नॉट रनिंग फॉर दैट फूड। मगर एक भूखे इंसान को अगर आप गंदा खाना भी दिखा दें, मे बी ही माइट रिजॉर्ट इवन टू वायलेंट मीन्स टू गेट दैट फूड। तो इसलिए इंसान के अंदर एक ख्वाहिश है जिससे इसकी शहावत भड़क सकती है कुछ मीन्स से। तो एक तो वो है दैट इट शुड बी लैशुरियस, और या फिर क्या हो, अपीलिंग टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट, और विच अपील्स टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट, प्रूरिएंट इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट शहवत अंगेज हो या एक इंसान की ख्वाहिशात को भड़काने वाला हो। या तीसरी चीज है इन द नेचर ऑफ इफेक्ट, दैट इट्स इफेक्ट इज that its effect appeals to the, if it's lascivious, or appeals to the prurient index, or if the effect in it नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, if it has the effect, yes, if it has the effect, if has the effect to deprave and corrupt, deprave and corrupt persons, कौन, जो recipients है या subjects जिसे कहेंगे, to whom the content is addressed, या जिनके हाथों में ये पड़ जाए, ये एक subjective approach है। अब मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को नोट करवाना चाहूँगा, केस लॉ को डिस्कस करते वक्त वो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी वो समझ आएंगे भी नहीं। एक तो उसमें ये है कि इसमें पूरे, एक तो है टेक्सचुअलाइजिंग द थिंग्स, टेक्सचुअलाइजिंग, एक तो है टेक्सचुअल अप्रोच होगा कि हम ये देखेंगे आपने एक लाइन भी अगर लिखी है अश्लील या फहश तो हम पकड़ेंगे। 292 does not follow the textual approach, it follows the contextual approach। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जजमेंट्स के वक्त हम समझेंगे, लेकिन अभी क्यों बता रहा हूँ, अभी आप 292 की वर्डिंग पे गौर जब करेंगे आप देखेंगे इफ टेकन एज अ होल, आप इस प्लीज इस फ्रेज पे गौर करिएगा, इफ टेकन एज अ होल, एज अ होल। तो अगर उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मतलब एक पार्ट उसका वैसा है, बट ये ज़रूरी है कि इफ टेकन एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल अगर मूवी है और मूवी विमेन की एट्रॉसिटीज़ पे दिखाई गई है, अब उसमें कोई एट्रॉसिटी विमेन के साथ जो है वैसी है जो डिप्रेविंग नेचर की है, बट कॉन्टेक्चुअली वो करेक्ट है, फिट है, उसको दिखाना ज़रूरी था। कोर्ट्स डोंट रिजॉर्ट टू द मीन्स और टू द वर्डिक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग सच थिंग्स ऑब्सीन,
ये ज़रूरी है। प्लीज़ इसका जो सबसेक्शन 1 है इसकी रीडिंग लगा के देख लीजिए। That if a book or pamphlet or writing or drawing or painting or representation or figure or any other object is lascivious or it appeals to the prudent interest or if its effect is that it is likely to deprave or corrupt persons who are who are likely to read or see it or the matter contained in it, that thing or that object is deemed to be obscene. अब lascivious IPC में कहीं नहीं मिलेगा आपको, appeals to the prudent interest कभी नहीं मिलेगा। तो humanity is transcending time and again। आज जो lascivious और appealing to the prudent interest नहीं था, people were not accustomed to it, maybe after 10 years they become, and that's what the story of human evolution has been from last 20-30 years। you might have seen, आपको खुद समझ में आएगा, web series or these online streaming platforms have diluted the concept of this certification। जो फिल्म सर्टिफिकेट्स मिलती हैं U/A, वो सारा डाइल्यूट हो गया अब कॉन्सेप्ट, उसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मैच्योरिटी तब देते थे जब फिल्म्स वेर स्क्रीन्ड ऑन इन सिनेमास। अब सिनेमा में चूँकि अब उसको पढ़ेंगे अभी हम तो, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको पूरा करा देता हूँ। तो प्लीज़ आप देख लीजिए 292 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि व्हेन अ थिंग और ऑब्जेक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन। अब अगर ऑब्सीन है कोई चीज़ तो फिर क्या, देन वी मूव ऑन टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 penalizes actually certain acts in relation to a thing which is obscene in nature। अब कोई चीज़ ऑब्सीन है तो कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दी ऑब्सीन, आपको ऑब्सीन लग रही है या नहीं लग रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली कोई चीज़ ऑब्सीन नहीं है, कोर्ट ने पाया कि वो ऑब्सीन नहीं है, एक कॉमन मैन को या चंक ऑफ सोसाइटी को वो लग रहा है वो ऑब्सीन है, दैट हार्डली मैटर्स। तो कोर्ट के पास टेस्ट क्या है, इफ़ इट्स lascivious or appealing to the prudent interest, or if its effect is of such a nature that it's likely to deprave and corrupt persons, in whose hands that object is likely to fall in a recipient। For example, अगर एक बहुत मतलब इसका इस प्रोविजन की ब्यूटी देखिए कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन है और ये ज़रूरी भी थी। फॉर एग्जांपल एक चीज़ अमेरिका में हो सकता है ऑब्सीन ना हो, बट इफ दैट मूवी इज़ रिलीज्ड इन इंडिया इट माइट एंडिंग अप ऑब्सीन बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सोसाइटी। तो इसलिए सब्जेक्ट्स का कंसिडरेशन भी बहुत ज़रूरी है। ना मूविंग ऑन, जो पीनल प्रोविजन और पीनल सेक्शन है वो 2 है। सब सेक्शन 1 तो डेफिनेशन के नेचर का है, सब सेक्शन 2 पेनलाइजेज। इसमें अब समझने की चीज़ें ये है कि जो सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए है इसमें मेंजरिया का कोई जिक्र नहीं है। डूइंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स, फॉर एग्जांपल, अब आप इसको बैरेक्ट में देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी चलूँगा बिकॉज अभी लेक्चर लंबा होता जाएगा। इट पेनलाइजेज सेल एंड लेटिंग ऑन हायर, ये लिख लेते हैं, सेल, लेटिंग ऑन हायर, letting on hire, similarly public exhibition, and similarly distribution, and distribution, circulation, and similarly making that person available in any manner given thereunder। इसमें क्लॉज ए पे मैं थोड़ी देर रुकूंगा। क्लॉज ए में मेंजरिया का कोई वर्ड नहीं है, ये समझने की ज़रूरी है। आप बेयर एक्ट में देख लीजिए कि दैट इफ़ दैट पर्सन सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट्स और लेट्स दैट ऑब्जेक्ट ऑन हायर और एग्जिबिट्स इट पब्लिकली और पुट्स दैट थिंग इन सर्कुलेशन और for the purposes of sale, and these all purposes, letting on hire, etc., makes this object available, तो उसने ऑफेंस किया। यहाँ तक ये कंप्लीट है। यहाँ उसका सिर्फ सेल करना, अगर उसने सेल किया ऑब्सीन ऑब्जेक्ट
ही इज लायबल अंडर क्लॉज 2A। यहाँ मेंस rea का कोई वर्ड नहीं है, याद रखिएगा। क्लॉज B में मेंस rea है, यस। तो इसलिए हमें समझना है किन एक्ट्स को लेकर के मेंस rea मेंशन किया गया है। उसमें आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कन्वेइंग, बस ये 3 है। इफ ही इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और कन्वेज एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्सीन ऑब्जेक्ट कौन सा, वो फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और वैसे हो सकता है विजुअल आर्ट्स और एनीथिंग, but he should have a knowledge or a reason to believe that such object will be sold let on hire। अब देखिए नॉलेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, ये मेंस rea हो। नॉलेज इस चीज़ की नहीं मांग रहा है सेक्शन की, ऑब्जेक्ट की ऑब्सीनिटी की नॉलेज उसको थी कि ये थिंग ऑब्सीन है, नहीं। नॉलेज इस चीज़ की कि ये चीज़ आगे जाके बेची जाएगी या कुछ और किया जाएगा इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी सोल्ड और लेट ऑन हायर और डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिकली और पुट इनटू सर्कुलेशन। तो फिर नॉलेज और रीजन टू बिलीव उससे रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू द ऑब्सीनिटी कैरेक्टर ऑफ दैट थिंग, ये समझना ज़रूरी है। सिमिलरली इसी तरह क्लॉज C है, उसमें भी इसी तरह मेंस rea होना ज़रूरी है। जब वो प्रॉफिट्स रिसीव करता है उसमें टेकिंग पार्ट या रिसीविंग प्रॉफिट्स, इन 2 एक्ट्स को अगर किया, इफ ही टेक्स पार्ट इन दैट बिजनेस और रिसीव्स प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस जिसमें ऑब्सीनिटी इन्वॉल्व है, एंड देन मेंस rea क्या होना चाहिए, ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव, ये नॉलेज और रीजन टू बिलीव क्या, किस चीज़ का, इस चीज़ का नहीं कि चीज़ ऑब्सीन है, दैट सच ऑब्जेक्ट विल बी सोल्ड और लेट ऑन हायर और पब्लिकली एग्जिबिटेड और पुट इनटू सर्कुलेशन, इसमें गिल्टी हो जाएगा क्लॉज C में, याद रखिएगा। नाउ क्लॉज D में है एडवर्टीजमेंट ऑफ दैट थिंग, एडवर्टीजमेंट और नॉलेज, यानी एडवर्टीजमेंट और ये इस चीज़ का प्रचार करे कि इसके पास या फला आदमी के पास ऑब्सीन मटेरियल मिलता है या मौजूद है, उससे प्रोक्योर किया जा सकता है। तो इसमें भी फिर मेंस rea का कोई एलिमेंट नहीं है, मेयर एडवर्टीजमेंट मेक्स हिम गिल्टी, यहाँ कोई मेंस rea नहीं है, A में भी कोई मेंस rea नहीं था, D में भी कोई मेंस rea नहीं है। नाउ लास्टली है E, और E क्लॉज के वक्त ही मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये वो ऑफेंस है जिसमें अटेम्प्ट और कमीशन दोनों को एट पार डील किया गया है। यानी अगर 292 का अटेम्प्ट है, याद रखिएगा पुलिस ने चार्जशीट फ्रेम होते वक्त अगर 511 लगाया है तो गलत लगाया है। 292 itself covers the commission as well as the attempt, और दोनों की सज़ा एक ही है इस केस में। सो इन फाइनल केस इफ़ ही ऑफर्स टू डू दैट एक्ट, यानी इसने कहा कि मैं ऐसी किताब लिखूंगा या लिखूंगा, उसके लिए तैयार हो गया, या मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा, सो इफ़ ही अटेम्प्ट्स टू डू दैट और ऑफर्स टू इन्वॉल्व इन दैट एक्ट विच अभी बोला गया है, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, लेटिंग ऑन हायर एट्सेट्रा, तो इन सारे केसेस में वो गिल्टी पाया जाएगा। इवन अटेम्प्ट की सज़ा भी एक ही है। प्लीज़ इन 5 क्लॉजेस को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फर्स्ट क्लॉज इज रिलेटेड टू सेलिंग, लेटिंग ऑन हायर और पब्लिक एग्जीबिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पुटिंग इनटू सर्कुलेशन एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट और मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, पैम्फलेट, पेपर, फिगर, रिप्रेजेंटेशन, पेंटिंग हो सकती है। सिमिलरली इसमें मेंस rea कोई ज़रूरत नहीं। बी में, क्लॉज बी में इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड कन्वेइंग, 3 चीज़ें हैं इसमें ऑब्सीन मटेरियल, और इसमें नॉलेज या रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ऑब्सीन हो या ना हो, उसे पता होना ज़रूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा प्रोविजन स्ट्रिक्ट लगेगा, बट मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये पूरा चैप्टर 14 इसी पे बेस्ड है। इसमें मेंस rea बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में या डिग्री का रिकग्नाइज और गिल्टी बना देता है, और कहीं कहीं तो मेंस rea चाहिए ही नहीं, जैसे यहाँ। तो यहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और कन्वेइंग में नॉलेज या रीजन टू बिलीव ये होना चाहिए कि दैट सच मटेरियल इज लाइकली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और पब्लिकली एग्जिबिटेड और लेट ऑन हायर और सोल्ड। सिमिलरली क्लॉज सी में इफ अ पर्सन टेक्स पार्ट
इन द बिजनेस ऑफ इन जिनमें ये ऑब्ससीन चीज़ों से डील किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कन्वेइंग एटसेट्रा सर्कुलेशन, और उसके प्रॉफिट्स रिसीव करे महज उसके मिसाल के तौर पर कोई मूवी बना दी और उसका कोई कंटेंट ऑब्ससीन है तो उसके प्रॉफिट्स, इवन सिर्फ प्रॉफिट रिसीव करना, तो क्या उसको पता हो कि मूवी के अंदर ऑब्ससीन चीज़ है? क्या ये क्लॉज सी ऐसा मांग रहा है? बिल्कुल नहीं। उसको नॉलेज या रीज़न टू बिलीव ये होना चाहिए कि सच ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट इज likely to be purchased or sold or imported, exposed, etc. Similarly, अगर एडवर्टीजमेंट किया है इस चीज़ का, तो एडवर्टीजमेंट पे भी वो लायबल हो जाएगा। उसने अगर एडवर्टीजमेंट किया कि मेरे पास मिलता है या किसी के पास मिलता है। और लास्टली, अगर ऑफ़र किया किसी को, ऑफ़र तक करना कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा या तैयार हूँ, या अटैम्प्ट किया किसी को देने का, तो इन सारे ओकेजन्स पे वो गिल्टी होगा। सेक्शन जो फॉलोइंग है 293 और 294, दो सेक्शंस, दोनों की पीनल प्रोविजंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका पीनल प्रोविजन अब डिस्कस करना रह गया है। इन सारे क्लॉजेज में ABCDE अगर किसी भी सेक्शन या किसी क्लॉज के अंडर वो गिल्टी पाया गया तो सज़ा क्या होगी? सज़ा वही होगी जैसे पहले बोला था, फर्स्ट कन्विक्शन पे अलग सज़ा होगी, सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे अलग सज़ा होगी। सेकंड और फर्स्ट कन्विक्शन पे जो उसकी सज़ा होगी वो है इम्प्रिजनमेंट, जो 2 साल तक हो सकता है, और उसमें फाइन जोड़ दिया जाएगा। ये किसी और से लिखते हैं, 2 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, और फाइन कितना हो सकता है? वो 2000 रुपये तक हो सकता है, 2000 रुपये। और अगर सेकंड कन्विक्शन हुआ या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विच इंक्लूड्स, और सेकंड कन्विक्शन में थर्ड कन्विक्शन भी आता है, फोर्थ, क्योंकि इसमें सब्सिक्वेंट भी लिखा है। तो पहले कन्विक्शन के बाद अगर आप दोबारा या तीसरी बार, चौथी बार कन्विक्ट हो गया तो उसमें पनिशमेंट इन्हांस हो जाएगी, विच में इन्हांस टू 5 years इम्प्रिजनमेंट, और 5 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन जो 5000 रुपये तक हो सकती है, 5000 रुपीज़ तक फाइन हो सकती है। अब इस लॉ को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके ग्राउंड्स, चूँकि लायबिलिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, अब आपने देखा तो जनरल एक्सेप्शंस में इंसान जनरली जा भी नहीं पाएगा अगर वो कोई लायबिलिटी क्योंकि स्ट्रिक्ट है। तो अब हमें ये देखना है कि फिर हम बचाएं किस ग्राउंड पे, अगर कोई एक्यूज्ड आ गया आपके पास लीगल प्रोफेशन में, तो उसमें जो ग्राउंड्स ऑफ एक्सेप्शन है वो 4 हैं, 3 ही हैं लेकिन उनको 4 मान के चलिए आप। एक एक्सेप्शंस कब ये लॉ 292 का एप्लीकेबल नहीं हो सकता, यानी कोई चीज़ ऑब्सीन भी हो सकती है, तब भी 292 के अंदर एक इंसान लायबल नहीं होगा। एक तो है, उसमें आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक गुड, जिसे कहते हैं पब्लिक गुड। अगर कोई बुक या पैम्फलेट या कोई रिसर्च पेपर या रिप्रेजेंटेशन या पेंटिंग पब्लिक गुड के लिए बनाया गया हो, पब्लिक गुड में जैसे आता है आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है ना, जैसे टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्सीन हो भी सकती हैं, बट पब्लिक गुड एक एक्सेप्शन है। नंबर 2, रिलीजियस पर्पस। अगर कोई चीज़ जैसे मूर्ति है, आइडल है, या कोई फ़ोटो है, ड्राइंग है, रिलीजियस पर्पस के लिए रखी गई हो, तो उसमें भी ऑब्सीन चीज़ें नहीं आती हैं। थर्ड, स्कल्पचर्स। इसमें स्कल्पचर्स कई तरह के आते हैं। एक तो है जो किसी टेम्पल में रखे हों सपोज, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे में रखा गया हो, बट इसमें स्कल्पचर्स सारे आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे आप समझिए, जो आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स होती हैं या जिसमें मॉन्यूमेंट्स एंशिएंट होते हैं, वहाँ अक्सर जाके आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनमें नेकनेस या न्यूडिटी जैसे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, या ऐसी पेंटिंग्स, ताकि वो हिस्ट्री को या आर्ट को या फेथ को, रिलीजन को रिप्रेजेंट करे। तो ये 3 चीज़ें इसके एक्सेप्शन में आता है। तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि 292, 293 और 294
3 सेक्शंस कवर करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट में से 292 है जो डिफाइन करता है इन ए वे कि कौन सी चीज़ ऑब्सीन होगी। कीवर्ड्स और की फ्रेजेस मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट कौन सी हो सकती है, किस फॉर्म में हो सकती है, मैंने उसमें हमने जैसे समझा कि बुक हो सकती है, पैम्फलेट है, पेपर है, कोई ड्राइंग है या पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन है। और कब कहा जाएगा वो ऑब्सीन है, अगर उसमें से 3 में से एक एलिमेंट हो, या तो वो लैशिवियस थी या नशावत अंगेज थी, या अपीलिंग टू द प्रूरियंट इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी इंसान की गंदे ख्यालात को उभारे। और थर्ड इज़ अगर उसका इफ़ेक्ट यानी टोटल इफ़ेक्ट ऐसा है कि इफ़ टेकन एज अ होल इट इज़ लाइकली टू डिप्रेव एंड करप्ट persons who are likely to get that, और या जिनके हाथों में वो पढ़ने वाला है और वो किसी भी मैनर में। फिर उसका पीनल प्रोविजन जो है थोड़ा प्रोसीजरल नेचर का है। इवन आप देखेंगे क्लॉज 2 इसका सीआरपीसी के नेचर का है कि सेल और इंपोर्ट और ट्रेडिंग अलग, वो सारे प्रोविजंस अलग अलग हैं। तो वो सारे इसके प्रोविजंस जो हैं सेपरेट है, डिफरेंटली लिखे गए हैं। एंड फिर उसके एक्सेप्शंस के ग्राउंड्स 3 हैं, मैंने बता दिया आपको। एक तो है जो पब्लिक गुड के कोई किताब रखी गई हो जिसमें साइंस है, लिटरेचर है, आर्ट है, या किसी भी जनरल कंसर्न लर्निंग के लिए जो कोई बुक हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या कोई भी पब्लिकेशन इस फॉर्म की हो। और दूसरा जो रिलीजियस पर्पस के लिए स्पेशली रखा गया हो, किसी भी रिलीजन के लिए। एंड थर्ड इज़ जो कोई टेम्पल में या आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो डिपार्टमेंट एक बाकायदा है उसमें कहीं उसकी म्यूज़ियम में वगैरह में रखा गया हो, इसी तरह जो है आइडल्स रखे गए हों कहीं। ये 3 तरह की चीज़ें ऑब्ससीनिटी में नहीं आती। अब फिर मैंने आपको बोला एक क्लास बेस्ड प्रोविज़न है 293 कि 20 साल से कम उम्र के लोगों को बेचना, किराए पे देना, या उनके अंदर तकसीम करना, या उसको पब्लिकली मुजाहरा कराना उसका, या उसको सर्कुलेशन में डाल देना, मगर 20 साल से कम उम्र। रेसिपिएंट होना चाहिए कोई भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट जो 292 ने बोली है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन फिर वही लगेगी जो 292 की क्लॉज 1 में दी गई है। तो फिर उसकी सज़ा अलग है, वो क्लास बेस्ड ऑफेंसेस है, सब्सटेंटिव ऑफेंस है। और फाइनली 294 में ऑब्सीन एक्ट्स और सॉन्ग्स को जो पब्लिकली कोई इंसान करे, उसमें एक्ट में सॉन्ग के साथ साथ जो है एक्ट अलग है पब्लिक प्लेस पे, और एक्ट अगर मैं करे तो कोई वर्बल सॉन्ग है, रिसाइटेशन है, बैलेड है, या वर्ड्स भी हो सकते हैं, मैं कुछ अल्फाज बोल दें पब्लिक प्लेस पे, तो उसकी पनिशमेंट अलग है। वो थोड़ा कम नेचर का ऑब्सीन एक्ट में इन्वॉल्वमेंट है। ये टेक्सचुअल पार्ट है जो हमने बेयर लैंग्वेज से समझा। इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका जुडिशियल डिसीजंस एंड इंटरप्रिटेशंस हैं, वो अगले लेक्चर में हम समझेंगे। बहुत ही क्रिटिकल और टफ है वो पार्ट। टिल देन आप इन प्रोविजंस को समझिए। हैव अ नाइस टाइम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ऑब्ससीनिटी के जो प्रोविजंस हैं इंडियन पीनल कोड में उनको समझने की कोशिश की, और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ब्रीफली ताकि वो चीज़ें समझने में अब आसान हो जाए। इस लेक्चर में हम सिर्फ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये लार्जली बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2.5 centuries बाय जुडिशियल इंटरवेंशंस और इंटरप्रिटेशंस। बिकॉज डेफिनेशन में ऐसे वर्ड्स एम्प्लॉय किए गए हैं जिनको लेजिस्लेचर की स्कीम में डेफिनेशंस में डाल देना अप्रोप्रिएट नहीं रहता। अगर इमोरल को डिफ़ाइन कर देते तो ये प्रॉब्लमेटिक होता, क्योंकि 10 साल बाद वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाता और सोसाइटी की एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स सर्टेन आइडियाज़ वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ सोसाइटी ने अभी एक्सेप्ट नहीं की है, 10 साल बाद, 8 साल बाद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। या एक चीज़ जो आजकल कंडोन हो रही, कंपाउंड हो रही है सोसाइटी में, कल को वो चीज़ बहुत ज़्यादा इन डेनिग्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स माना जाता है। तो देयर इज़ अ कैटेना ऑफ जजमेंट स्टार्टिंग विद द ओल्डेस्ट इन इंडिया इज़ रंजीत डी ओडेशी। हम उसको डिस्कस करेंगे, रंजीत डी ओडेशी। और कुछ आपको बहुत ज़्यादा फ्रेजेस जो टेक्स्ट बुक्स में और कमेंट्रीज में पढ़ने को मिलेंगे, जिसे आर वर्सेस हिकलिन का है, हिकलिन टेस्ट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद रॉथ टेस्ट है, इसके बाद जो है मिलर टेस्ट है,
और अदर टेस्ट्स हैं, ये है डिसेंसी एंड मोरालिटी के टेस्ट्स, जो जुडिशियल यार्डस्टिक्स हैं समझने के कि कोई चीज़ कब इनडिसेंट या इमोरल कहलाएगी अंडर लॉ। तो इसके प्रोविजंस जो हैं ऐसे हैं, जैसे हमने देखा 292 में सबसेक्शन 1 में ऐसे वर्ड्स को एम्प्लॉय किया। आप देखिए वहाँ क्या वर्ड्स थे, कोई चीज़ कब ऑब्सीन कहलाएगी, कोई पिक्चर, कोई चित्र, कोई मूर्ति, कोई किताब, कोई किताबचा, बल्कि कोई मूवी भी ऑब्सीन तब होगी जब तीनों में से एक चीज़ होगी, शहवत अंगेज हो वो, इफ़ इट्स लैशवियस। अब ये क्या है, इट इज़ एक्चुअली टेम्पटिंग और इन्वॉल्विंग अ पर्सन इनटू ओवर्ट सेक्सुअल डिज़ायर। अब किस चीज़ से इंसान की शहवत और अंदर की वो इंसानी ख्वाहिश और कमज़ोरी भड़कती है, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अब जैसे ओपन सोसाइटी में, जो सोसाइटीज़ दिन ब दिन ओपन होती जा रही हैं, ओपन सोसाइटीज़ में ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कंडोन हो जाती हैं और उनको ऑब्सीन नहीं माना जाता है, बिकॉज लैशवियस वहाँ इसलिए नहीं है, it's not because they are more liberal or welcoming to such ideas or styles of life or they matter their own affairs, बल्कि उसका रीज़न ये है कि स्लाइटली इंसान के अंदर वो एक हार्मोनल एक्सेप्टेंस हो जाता है इन चीज़ों को लेकर के। दिस इज़ द ओनली फैक्ट। तो लैशवियस है। और अपीलिंग टू द प्रूडिएंट इंटरेस्ट, जो दूसरा फैक्टर था, अपीलिंग टू द प्रूडिएंट इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो अंदर के इंसान के हवास हैं, सेंसेस हैं, उनमें एक सेंस है, एक सेंसेशन है दैट ही माइट बी एक्साइटेड सेंसुअली और सेक्सुअली बाय सर्टेन मीन्स ऑफ सर्टेन टेक्स्ट्स और मूवीज़। तो ये चीज़ हो, या तीसरी चीज़ इफेक्ट हो कि इट्स लाइकली टू डिप्रेव एंड करप्ट, डिप्रेव एंड करप्ट द माइंड्स और ऑफ द पर्सन हु इज़ लाइकली टू रिसीव इट। यही पुरानी, अब हम कहेंगे, अभी टेस्ट्स की तरफ जाते हैं, ये बहस कहाँ से आई। ये जो वर्ड्स आपको स्टैट्यूट में मिलेंगे, एक्चुअली अर्लीस्ट इंग्लिश लेजिस्लेशन जो इस पे बेस्ड है वो है ऑब्सीन पब्लिकेशंस एक्ट, ऑब्सीन पब्लिकेशंस एक्ट। ये इंग्लिश ने इंडियन पिनल कोड से जस्ट पहले ही लाया था 1857 में इंग्लैंड में, और यही डेफिनेशन मोर और लेस इन्हीं फ्रेजेस को यहाँ एम्प्लॉय किया गया था। देन एट द टाइम ऑफ इंडियन पिनल कोड यहाँ भी ये आ गया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जुडिशरी के पास जब केस आया, इट इज़ द केस ऑफ आर वर्सेस हिकलिन, जिसे हम हिकलिन टेस्ट भी कहते हैं। हिकलिन, आर वर्सेस हिकलिन 1868 में आया। सो यू कैन नोट डाउन दिस केस, क्योंकि हम यहीं से शुरू करेंगे। आर वर्सेस हिकलिन 1868। इस केस में एक आदमी था जिसका नाम था हेनरी स्कॉट। उसने कुछ पैम्फलेट या किताब लिखी जिसमें उसने बहुत ज़्यादा मजम्मत की चर्च की। तो चर्च के ख़िलाफ़, जो चर्च में कॉन्फेशंस होते हैं जिसमें मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं, कुछ फैक्ट्स उसने ऐसे इलिसिट करवाए जिनको जो है ऑब्जेक्शनेबल समझा गया, या जिनको इनडिसेंसी और इमोरलिटी या ऑब्ससिनिटी की परव्यू में समझा गया, और उस पैम्फलेट पर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने बैन लगा दी। जब वो अपील के ज़रिए से एक इंसान के पास गए जिनका नाम ही था बेंजामिन हिकलिन, उसी के नाम से ये केस चला, तो बेंजामिन हिकलिन ने ये कहा कि इस पैम्फलेट का मकसद है जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं चर्च में, उनको एक्सपोज करना। और बेंजामिन हिकलिन ने उसको लोअर कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। बेंजामिन हिकलिन जब ये रिवर्स किया तो इसके खिलाफ अपील चली गई और आर वर्सेस हिकलिन इसी में चला गया, बिकॉज इन पर्सन हम इसके ऑर्डर के खिलाफ ऊपर जा कर के क्वींस बेंच में इन्होंने अपील डाल दी। तो क्वींस बेंच में जस्टिस कॉकबर्न ने इस केस को सुना, और कॉकबर्न ने इसको लोअर कोर्ट के ऑर्डर को फिर से अपहेल्ड करके इसके इस लिटरेचर या पैम्फलेट पे बैन लगा दी, और यही टेस्ट रिकॉग्नाइज करके कहा कि अगर किसी चीज़ में इफ़ देयर इज़ अ टेंडेंसी दैट इट्स लाइकली टू डिप्रेव एंड करप्ट दोज माइंड्स विच आर ओपन टू सच इमोरल इन्फ्लुएंसेस, तो फिर कहा जाएगा कि वो चीज़
इनडिसेंट और इमोरल है, और ये हमेशा यानी सब्जेक्टिव टेस्ट है। एंड दिस हेल्ड गुड, थोड़ा स्ट्रिक्ट टेस्ट था, बिकॉज अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन, एक चंक ऑफ पॉपुलेशन आता जो ये कहता कि ये हमें लग रहा है ऑब्सीन है, तो कोर्ट उसको कंसिडर करके हिकलिन टेस्ट में कह देती थी कि दिस इज़ लाइकली टू डिप्रेव द एंड करप्ट द माइंड्स। तो हिकलिन टेस्ट यहाँ से इवॉल्व हुआ 1868 में, एंड फॉर सो मेनी ईयर्स दिस टेस्ट हेल्ड गुड। ऑन दिस नोट कि हिकलिन में क्या हुआ, वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इंडियन जूरिस्प्रूडेंस फॉर अ वाइल, और वो इसी तरह समझ में आएगा। इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में देयर इज़ अ कटिना ऑफ जजमेंट स्टार्टिंग विद रंजीत डी उडेशी एंड देन ख्वाजा अब्बास अहमद अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी तरह है बैंडिट क्वीन केस का ओमपाल सिंह हून एंड द लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ राधा कृष्णन एंड मुरुगन एंड M.F. हुसैन एंड ऑब्वियसली अवीक सरकार। बट द शिफ्ट जो है, पैराडिगम शिफ्ट जो हुआ, वो मैं आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में बता दूं, वो एक्चुअली रंजीत डी उडेशी से शुरू हुआ। रंजीत उडेशी आप इसको कह सकते हैं, रंजीत उडेशी, और ये हिकलिन वाज हेल्ड गुड और इंडिया में रिकग्नाइज किया गया इस पर रिलाई करके। ये 1964 की जजमेंट है प्रोबेबली, और ये जा कर के फिर चेंज हुई 2014 में राधा। बीच में एक इवेंट होता है 1964 से पहले, वो होता है अमेरिका में। क्योंकि डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज नहीं थी उस टाइम, इंटरनेट वगैरह के ज़राए नहीं थे, मे बी इंडियन कोर्ट्स वुड हैव ओपनड इटसेल्फ और नॉट, बट जो भी है इट्स नाउ अ हिस्ट्री। लेकिन 1957 में यूएस में एक जजमेंट आती है, इसको यहाँ समझिए यूएस की जजमेंट है, जिसे हम रॉथ टेस्ट भी कहते हैं, रॉथ वर्सेस यूएस। तो रॉथ टेस्ट ये 1957 में एक रेकग्नाइज, एक स्टैंडर्ड ले डाउन करता है ऑब्ससीनिटी को समझने का, और वो जा कर के सीधे 1957 में आया। आफ्टर अ गैप ऑफ 57 years in India it's reflected back in 2014 in अवीक सरकार's case। तो हम ब्रीफली एक एक जजमेंट को इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में से रीड कर लेते हैं, और मे बी इट्स हाईली लाइकली दैट 2014 में अवीक सरकार ने ऑब्वियसली इनहेरिट किया इस जूरिस्प्रूडेंस को सिंपली फ्रॉम द जजमेंट ऑफ रॉथ। सो वी स्टार्ट विद द रंजीत उडेशी जजमेंट। रंजीत डी उडेशी, रंजीत डी उडेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1964 या 65, कहीं कहीं आपको रिपोर्टर्स में ये बाद में रिपोर्ट हुई तो 1965 की जजमेंट दिखेगी। द फैक्ट्स ऑफ दिस केस ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। हुआ इसमें ये कि रंजीत डी उडेशी जो है, ही वॉज वन ऑफ द 4 पार्टनर्स जो जिनके पास एक बुक स्टॉल था मुंबई में प्रोबेबली। तो ये अपने स्टॉल में एक किताब रखे हुए थे जिसका नाम था लेडी चैटरलीज लवर, और ये किताब ऐसी है कि मुझे लगता है शायद ही कोई मुल्क है उस टाइम जहां इस पे कोई लीडिंग केस नहीं है ऑब्ससीनिटी का। लेडी चैटरलीज लवर बाय D.H. लॉरेंस ये किताब बेचे हुए थे। अब इसकी सेल कर रहे थे ये, और जिसमें ये कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें उठाई गई और जिन्हें कहा गया कि वो ऑब्सीन है। अब यहाँ पे रोक के मैं थोड़ी देर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। मैंने पहले ही कहा था पिछले लेक्चर में दैट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19(1)(a) है, ये 19(1)(a) इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और जब भी ऐसी ऑब्ससीनिटी के केसेस आए हैं लैंडमार्क, तो जो अक्यूज्ड है उसने अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्लीड किया है कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और दिस इज़, ये जो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्लॉज 2 इसमें डाला गया। पहले तो सिर्फ फ्रीडम्स थी, बाद में रेस्ट्रिक्शंस भी आ गई इस पर। तो 19(2) में इसमें 6 फ्रीडम्स हैं या 7 हैं एक्चुअली, तो एक तो रिपील हो गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी वाला, और वो 300(a) में डाला बाद में।
बाकी राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसी तरह पीसेबली टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ मेकिंग एसोसिएशन, एंड इसी तरह मूव एंड रिजाइड एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसी तरह फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस, वो फ्रीडम्स हैं। तो 19A1A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसे यूएस में हम 14th अमेंडमेंट क्लॉज भी कहते हैं। एंड दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशंस, जो 6 यहाँ 7 राइट्स हैं तो 7 लिमिटेशंस उधर हैं 19(2) में, और जिसमें से एक है डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो डिसेंसी और मोरालिटी के ग्राउंड पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल किया जा सकता है। तो कोर्ट्स के पास इंडिया में हमेशा ये चैलेंज रहा, जब भी अक्यूज्ड ने प्लीड किया या रेस्पोंडेंट ने प्लीड किया कि 19(1)A में उसका राइट है, तो फिर प्रोसिक्यूशन को ये लाना पड़ा कि नहीं 19(2) में इसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो सेम वाज द केस ऑफ दिस रणजीत डियोडेशी, और कोर्ट हैड टू डिफरेंशिएट व्हाट एन ऑब्सीन एंड व्हाट एन आर्टिस्टिक एक्टिविटी वाज। तो कोर्ट ने इसकी तरफ लीन किया और हिगलिन टेस्ट को इन्वोक करके पहली बार ये कहा कि इस अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 19(1)A, और इसमें लेडी चैटर्लीज लवर जो नॉवेल है इस पर बैन लग गई, और हिगलिन टेस्ट को अप्लाई करके ये ख़त्म कर दिया गया कि इसका सेल। मूविंग ऑन, इसके बाद 4 साल बाद एक और जजमेंट आई, वो आप देख लीजिएगा, जस्टिस हिदायतुल्लाह की के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, जिसमें अ टेल ऑफ 4 सिटीज़ जो है उसमें मुंबई के साथ 3 और शहरों की कहानी दिखाई कि अमीर और गरीब कैसे रहते हैं। तो उसमें 4 सिटीज़ में मुंबई की रेड लाइट एरिया का जिक्र था, और सम थिंग्स एंड सम सीन्स वेयर फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल, और क्योंकि हिगलिन टेस्ट इंडिया में प्रैक्टिस में था तो कोर्ट्स का अप्रोच जो है प्रोबेबल था, बट कुछ रिमार्क्स थे उसमें जो जजेस ने ऑब्जर्व किए, और फिर डिसीजन आया। आप ये होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ कि अब्बास की जजमेंट का। देन आफ्टर दैट वी हैड अनदर जजमेंट ऑफ, उसके बाद बॉबी आर्ट, यस, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह। बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है ये, नाम में भी और जजमेंट में भी। ओमपाल सिंह हून, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस हून, और ये 1996 की जजमेंट है, 1996। इस केस में एक मूवी बनाई गई थी जो बहुत पॉपुलर हो गई थी, बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन जो है ये फूलन देवी की ज़िंदगी पे आधारित एक मूवी थी, फिल्म थी, जिसमें कुछ न्यूडिटी थी थोड़ी बहुत। उस टाइम की न्यूडिटी आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि अब इट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। अगर ये मूवी आज के टाइम में रिलीज़ होती तो मुझे उम्मीद है इसको यू सर्टिफिकेट मिलता, लेकिन वो क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये 1996 में, तो उसमें there was some element of nudity and even some expletives, यानी कुछ गाली गलौज भी था मूवी में। और ये एक नॉवेल पे आधारित थी जो माला सेन जो बंगाल की है उन्होंने लिखी थी। तो उसमें फूलन देवी की साथ जो चीज़ें हुई और किस चीज़ ने उसको मजबूर किया कि वो इतनी बड़ी वो कहते हैं गैंगस्टर बन गई, तो उस पे आधारित, उस पे बेस्ड एक मूवी थी। तो इस मूवी के ख़िलाफ़ जो इसमें रेप सीन 1-2 जगह या एक जगह दिखाया गया था, उसके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट हुई और फिर इसको इंडिसेंट कहा गया, और फिर बाय द वे ऑफ अपील इट रीच सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जस्टिस बारूचा ने जजमेंट दे दी। एंड बहुत अच्छी जजमेंट है ये, इसमें ऑल्दो अब्बास वाली जजमेंट की तरफ रेफ़र किया है, बट कोर्ट ने इसमें जो है एक ट्राइब्यूनल की बेसिस पे, एक्चुअली इसमें एक ट्राइब्यूनल बना था जिसमें 3 वुमेन थे पहले और एक मैन, और उस ट्राइब्यूनल ने मूवी को देखा और एनालाइज करके कहा कि मूवी फिट है।
और इस मूवी को एक सर्टिफिकेट, क्योंकि मूवीज़ में आप जानते हैं यहाँ मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ, 4 किस्म के सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक तो होता है यू तो होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, उसमें एज वेज की कोई कैद नहीं होती। और दूसरा होता है ये हो गया अडल्ट, तो इसमें सिर्फ अडल्ट ऑनली होता है। एक होता है यू बाई ए अंडर पेरेंटल गाइडेंस, तो ये यूनिवर्सल होती है बट अडल्ट एलिमेंट थोड़ा बहुत होता है। और एक होता है एस जो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए होती है, इसको तो छोड़ दीजिए। अब ये सर्टिफिकेशन भी इट्सेल्फ अपने आप में बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज़ है। बहुत सारी मूवीज़ पे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर सवाल उठाते हैं कि ये इसको क्यों इस सर्टिफिकेट में डाल दिया, क्योंकि एक तो व्यूवरशिप बढ़ती है। अब यूनिवर्सल होगा तो हर थिएटर में रिलीज़ होगी। मैं इसलिए कह रहा था कि ये सर्टिफिकेशन का पर्पज़ बहुत हद तक डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि थिएटर्स पे तो इफेक्ट करेगा। आप जो वेब सीरीज़ हैं उनको क्या कर लेंगे आप, वो तो एक प्लेटफॉर्म नहीं तो दूसरे से रिलीज़ कर देते हैं, तो किसी हद तक वो डाइल्यूट हो गया है, नॉट इंटायरली। और इसी तरह जो है फिर व्यूवरशिप और दूसरा टैक्स के मामले में भी, क्योंकि यू होगा तो टैक्स में थोड़ा रिडक्शन हो जाता है। तो इस मूवी को उन्होंने सर्टिफिकेट देके आगे पास कर दिया, मगर वो बाय वे ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट जब आए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस केस में जस्टिस बारूचा ने बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हून में मूवी को कहा कि ये ऑब्सीन नहीं है, और इसमें जो मैसेज है, जो रेप सीन्स हैं और एक्सपेरेटिव्स हैं, वो ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मूवी का ऐसा है कि दैट एंटायर कॉम्प्रहेंशन हैज़ टू बी रेड इंटेलिजेंटली। और इसलिए इसको जो सीन्स हैं दे आर बेस्ड और फोकस्ड टू highlight the trauma and emotional turmoil of the victim, or to evoke sympathy for her and disgust for the rapists। तो इसमें कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी, बट स्टैंडर्ड जो है हिकलिन का अभी भी मेंटेन रहा। फिर ये चेंज कब हुआ वो हम जानेंगे। तो बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट एक और है, जैसे मकबूल फ़िदा हुसैन वर्सेस राजकुमार पांडे है, ये बस मेंशन कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें एम एफ हुसैन जो मशहूर पेंटर थे, उनकी एक पेंटिंग को लेकर सवाल हो गया, जिसमें उन्होंने भारत माता की नाम से इस पेंटिंग का नाम रखा गया था। एक पेंटिंग बनाई थी मकबूल फ़िदा हुसैन -M, आई थिंक वी हैव अ स्टूडेंट ऑफ दिस नेम इन क्लास, ये एलिमेंट अगर हटा दिया जाए। मकबूल फ़िदा हुसैन वर्सेस राजकुमार पांडे, 2008 की ये जजमेंट है, रादर 2008 या 7, हाँ 8 की, 2008 की जजमेंट है। और ये बेस्ड है, मैंने आपको बोला कि इसमें एक पेंटिंग थी एम एफ हुसैन की, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि ये नहीं है ऑब्सीन। इसको ऑब्सिनिटी के एलिमेंट से बाहर निकाल के कहा कि आर्ट को हमें ऑब्सिनिटी से अलग पढ़ना चाहिए ना। जो लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने पुरानी सारी जूरिस्प्रूडेंस को एक शिफ्ट दे दिया, वो एक्चुअली यहाँ डिस्कस करना मकसद है, वो है अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 2014 की जजमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है ये। इसकी साइटेशन जो है पूरी 2014 सुप्रीम कोर्ट केसेस 257, हाँ 2014 सुप्रीम कोर्ट केस, वॉल्यूम नंबर 4 है ये, 2014 4 SCC 257। तो इसमें एक इंसान थे, पहले तो इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जर्मनी में एक पब्लिशर था जिसका नाम था स्टर्न। They published a magazine on the cover page of which they photographed a famous footballer, I think, और टेनिस प्लेयर थे वो, बोरिस बेकर। उन्होंने बोरिस बेकर and his fiancée, बोरिस बेकर और उसकी फियांसी का नाम था बारबरा फेल्टस,
बारबरा फेल्टिस। तो बोरिस बेकर और बारबरा फेल्टिस की एक इमेज आई इन विच बोथ ऑफ देम वर completely naked. The upper part of their body was visible and Boris Becker was standing right behind that Barbara Feltis, covering the upper part of the Barbara's body with his bare hands. Barbara was a dark-skinned woman, and inside that magazine he had expressed his opinion about being against racialism and apartheid. और इंडिया में जाकर के अमृत बाजार पत्रिका प्रोबेबली और एक और कोई मैगज़ीन थी जिन्होंने इसको यहाँ पे पब्लिश कर दिया कुछ महीने बाद। और ये पुरानी मैगज़ीन थी जर्मनी की, और इंडिया में इसका जब पब्लिकेशन हो गया तो इसकी कंप्लेंट चली गई। पर्सन वो जो बन के चले गए उन्होंने अभी सरकार के ख़िलाफ़ केस कर दिया और ऑब्ससिनिटी का चार्ज लगाया गया, और बाय वे ऑफ मैनी अपील्स इवन हाई कोर्ट ने तक उसको कह दिया ही वाज फोर्स्ड टू रीच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो इसको तो एक्विट कर दिया, ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन जो लैंडमार्क शिफ्ट है वो आया। कोर्ट इवॉल्व्ड और रिकग्नाइज्ड अनदर टेस्ट जिसे हम कहते हैं कंटेम्पोररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट, यानी आजकल का माशरा, आजकल की सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं ये देखना ज़रूरी है। कम्युनिटी को किसको डिफ़ाइन नहीं किया इस जजमेंट में। कम्युनिटी से मुराद क्या दिल्ली की कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मूवी दिल्ली की है, दिल्ली में रिलीज़ हो गई और चलते चलते वो समझिए उड़ीसा के गांव में आ गई, अब गांव में तो अलग ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, तो कम्युनिटी अगली जजमेंट्स में फिर कहा गया था कि उसको नेशनल सिमेंटिक्स में लेना चाहिए। बट कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये यूएस की जजमेंट जो है रॉथ की जजमेंट में पहली बार 1957 में रिकग्नाइज की गई, और इंडिया में भी 250। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, 1957 की ये जजमेंट है और ठीक 57 इयर्स बाद इंडिया में रिकग्नाइज की गई 2014 में, और पेज नंबर 257 पे है ये एससीसी के। तो 57 कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट कि आजकल सोसाइटी क्या सोचती है, एंड दैट पर्सन वाज एक्विटेड। देयर आर सम अदर जजमेंट जिनकी तरफ मैं बस रेफ़र कर रहा हूँ, आप उनको देख लीजिएगा अपनी जगह। उसमें जो एक है मुरुगन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसको कहाँ लिखूँ मैं, मुरुगन यू कैन रेफर टू दिस वर्सेस तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 2016 की जजमेंट है। देन वी हैव अनदर केस ऑफ एन राधाकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 की जजमेंट है। ये दीपक मिश्रा साहब की पूरा अंग्रेज़ी से भरी हुई है। तो दीज आर सम लेटेस्ट जजमेंट्स रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ ऑब्सिनिटी, लेकिन इसमें लैंडमार्क जजमेंट यही दो हैं। सफ़र आपको यू हैव टू ट्रेस द जर्नी फ्रॉम रंजीत डी उडेशी टू अवीक सरकार। तो बीच में हम फिर से यूएस की तरफ शिफ्ट करते हैं, बिकॉज मैंने आपको मेंशन किया कि इसमें यूएस की जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन इवॉल्विंग दिस। मैं इस राधाकृष्णन की केस को ब्रीफली मेंशन करूं, आपको याद होगा एक किताब कुछ साल पहले न्यूज़ में आई थी जिसका नाम था मीशा। ये राधाकृष्णन की जजमेंट में एक किताब थी, आप पढ़िए, बड़ी इंटरेस्टिंग केसेस है। मीशा का मतलब मलयालम में मूछें होती हैं, मस्टाचेस। तो उस पर एक जो है कुछ डायलॉग्स थे जो ऑन इन ए टोन दे वर मिसोजिनिक, बट फिर कॉन्टेक्स्ट को रीड करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी। यू मस्ट रीड दैट जजमेंट। बहुत सारा पार्ट यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम और ड्यू टू दैट नेचर ऑफ द कंटेंट। बट हम पहले जाते हैं यूएस की जजमेंट्स की तरफ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बोला रॉथ की जजमेंट है, रॉथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो जजमेंट है ना, यही एक्चुअली है जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ये 1957 की जजमेंट है और जिसने
इस बात को सेटल कर दिया कि जो ट्रेडिशनल टेस्ट था हिकलिन, दैट वाज नॉट अ टेस्ट गुड एनी मोर। और इसने, हालांकि जो इंडिया में रिकग्नाइज़ किया गया, इस बात को मैं यहाँ मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि इंडिया में जो स्टैंडर्ड रिकग्नाइज़ किया गया ना, कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ये इन अ वे समझिए कि वैसा टेस्ट नहीं है जो रॉथ ने एक्चुअली रिकग्नाइज़ किया था, क्योंकि रॉथ टेस्ट बेस्ड है 3 prong, इसे 3 prong टेस्ट भी कहते हैं, 3 चीज़ों पर। उनमें से आप देख लीजिएगा, उसमें जाने में आप टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, फिर आपके सिलेबस के पार्ट भी नहीं है, बट देयर दिस इज 3 prong टेस्ट, जिनमें से एक prong यही है कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। 2 और भी हैं, और जिन इन तीनों से बच के निकल के आने चाहिए एक कंटेंट, तब कहा जाएगा दैट इट इज़ नॉट ऑब्सीन और इंडिसेंट और इमोरल। वो तो रॉथ की जजमेंट में था, बट आप जानते हैं, मैं आपको बताया भी हूँ कि अवीक सरकार में यहाँ एक ही ग्राउंड उसमें से रिकग्नाइज़ किया है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। इसी तरह देयर वाज वन मोर केस आफ्टर दैट, दैट इज़ नोन एज मैसाचुसेट्स का जजमेंट जो है, उसका नाम पता नहीं क्या है एक्चुअली, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मैसाचुसेट्स, जो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड वो केस है। चलिए, उसको आप लोग समरी में ढूंढ लीजिएगा कहीं, वो कहीं किसी बुक की कमेंट्री में मिल जाएगा, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है और कोई है, यस, मिलर की जजमेंट, मिलर टेस्ट जिसे हम कहते हैं, मिलर टेस्ट। हमने आपसे कुछ टेस्ट का जिक्र किया था, जैसे रॉथ टेस्ट, मिलर टेस्ट और हिकलिन टेस्ट। यही अक्सर टेस्ट हैं जो लॉ में डिस्कस किए जाते हैं। तो ये मिलर टेस्ट बेस्ड है मिलर वर्सेस कैलिफोर्निया के केस पे, मिलर वर्सेस कैलिफोर्निया। ये 1973 की जजमेंट है, और इसने ऑब्सनिटी में ये रीड किया कि देयर मस्ट दैट थिंग विच इज़ अटरली विदाउट सोशली रिडीमिंग वैल्यू। तो ये एक नया टेस्ट रिकग्नाइज किया गया, दिस इज़ इन एडिशन टू दैट रॉथ टेस्ट, मगर रॉथ टेस्ट स्टिल होल्ड्स गुड। अब अगर इस टाइम इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, इट्स बेस्ड ऑन दैट कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट। तो इसके अलावा जो जजमेंट्स है रिसेंट कुछ मैंने किए हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जजमेंट्स का पार्ट देख लीजिएगा। होप यू एन्जॉयड दिस सेशन, आई वॉज बिट टायर्ड, so anyhow we managed to pull this off. Thank you for your time.